بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علاقائی خبرنامہ کے ساتھ میں ہوں اعتزاز نقی۔ اے خالق ارض و سما، تجھے واسطہ ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے آل پاک کا، ہمیں دنیا کے تمام مصائب و آلام سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ، محمد و آل محمد علیہم السلام کے صدقے میں کشمیر اور فلسطین سمیت دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد اور نصرت کر اور انہیں آزادی کی نعمت سے سرفراز فرما۔ یہاں پہ وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اسلام آباد، راولپنڈی اور اس کے مضافات میں اذان عصر کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا أشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله حي على حي على حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد.
ویلکم بیک۔ وفاقی دارالحکومت میں دن بھر شدید ہبس کے بعد ہلکی بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا۔ بادلوں اور سورج کی آنکھ مچولی جاری ہے۔ اس حوالے سے بات کرتے ہیں علمدار بلوچ سے۔ جی علمدار۔ جی بالکل اعتزاز، اسلام آباد کی اگر ہم بات کریں تو اسلام آباد میں صبح اگر دیکھیں تو صبح ہبس تھا اور دن میں آنکھ مچولی جو ہے وہ بادلوں اور سورج کی جاری رہی۔ تھوڑی دیر قبل جو ہے اسلام آباد میں ہلکی بارش ہوئی ہے، ٹھنڈی ہوا چلی ہے تو موسم یکسر جو ہے وہ تبدیل ہوا ہے اور جو ہبس تھا وہ بھی ختم ہوا ہے اور ہبس کا کافی حد تک زور جو ہے وہ ٹوٹ گیا ہے اور موسم خوشگوار ہو گیا ہے۔ ابھی بھی اگر ہم بات کریں تو ابھی بھی بادلوں اور سورج کی آنکھ مچولی جاری ہے اور محکمہ موسمیات کے مطابق جو ہے اگلے 2 سے 3 دن میں جو ہے وہ بارش کے امکانات وقفے سے جو ہے بارش ہونے کا امکان ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ محکمہ موسمیات میں جو ایک بڑا سپیل ہے وہ سندھ اور بلوچستان میں جو ہے امکان ظاہر کیا گیا ہے کہ جمعے سے شروع ہونے کا امکان ہے، جو اتوار اور جمعے کے درمیان ہو سکتا ہے اور وہ ایک بڑا سپیل ہوگا۔ محکمہ موسمیات نے اس چیز کی جو ہے وہ کہا ہے۔ ابھی اسلام آباد میں وفاقی دارالحکومت میں موسم خوشگوار ہے اور پچھلے 1-2 دن میں جو ہبس تھا، گرمی کی شدت میں تھوڑی زیادہ ہوئی تھی، اس میں ابھی کمی آئی ہے اور اس وقت بھی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے اور موسم خوشگوار ہو گیا ہے۔ جی بہت شکریہ علمدار بلوچ۔ پشاور میں بارش سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق پشاور سمیت خیبر پختونخوا میں بارشوں کا نیا سپیل شروع ہونے کو ہے۔ مزید جانتے ہیں عدنان شاہد سے۔ جی عدنان، بتائیے پشاور کا موسم کیسا ہے؟ آج بالکل دیکھیں، آج عید الاضحیٰ کا تیسرا اور آخری دن ہے۔ پشاور میں پہلے 2 دن جو تھی وہ انتہائی سخت گرمی تھی۔ درجہ حرارت جو تھا وہ 36 سے 40 سینٹی گریڈ جو تھا وہ گھومتا پھرتا دکھائی دے رہا تھا، مگر آج تیسرا روز ہوتے ہی موسم جو ہے وہ کافی خوشگوار ہو گیا ہے۔ آسمان پر بادلوں نے ڈیرے ڈال لیے ہیں، گرمی کا زور جو ہے وہ ٹوٹ سا گیا ہے، ہلکی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں جس کے بعد موسم کافی سہانا ہو گیا ہے۔ اگر آج درجہ حرارت کے حوالے سے بات کریں تو کم سے کم جو درجہ حرارت ہے وہ 33 سینٹی گریڈ، جبکہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ 34 یا 35 سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اسی طرح ہوا میں نمی کا جو تناسب ہے وہ 60% ہے۔ محکمہ موسمیات نے بھی خوشخبری سنا دی ہے کہ پشاور سمیت خیبر پختونخوا کے بالائی علاقوں میں آج سے جو ہے وہ بارشوں کی پیشن گوئی کر دی گئی ہے۔ تیز گرج چمک کے ساتھ جو ہے بارش برسنے کے جو ہیں اثرات ظاہر کیے جا رہے ہیں۔ موسم کافی خوشگوار ہے، ہوا چل رہی ہے، شہری جو ہیں وہ اس موسم سے کافی لطف اندوز ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ ضلع انتظامیہ کی جانب سے اور پی ڈی اے کی جانب سے تمام تر متعلقہ جو ادارے ہیں ان کو صوبہ بھر میں جو ہے وہ الرٹ رہنے کی ہدایت بھی جاری کر دی گئی ہے۔ اقدامات اٹھانے کی ابھی سے جو ہے وہ ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔ علائشوں کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں کہ شہر کے مختلف مقامات پر کیونکہ عید کا موقع ہے تو نالوں میں جو ہے برساتی نالوں میں علائشیں لوگ پھینک دیتے ہیں تو اس کی وجہ سے وہ بند ہو جاتی ہیں، مگر اب WSSP کے ملازمین کو بھی ہدایت کی گئی ہے کہ بارشیں ہو جانے سے قبل جو ہے تمام تر جو نہریں ہیں جو آپاشی کے لیے بنائی گئی ہیں ان کو صفا کریں تاکہ کسی قسم کا کوئی بھی مسئلہ جو ہے وہ درپیش نہ آ سکے۔ جی بہت شکریہ عدنان شاہد۔ کراچی میں نالوں کی صفائی کے کام کا آغاز کر دیا گیا۔ گجر نالے سمیت شہر کے دیگر چھوٹے بڑے نالوں سے کچرا صاف کیا جا رہا ہے۔ نالوں کی صفائی FWO کر رہی ہے۔ شہر قائد میں مونسون بارشوں کے تیسرے اسپیل سے قبل شہر کے نالوں کی صفائی کا کام شروع کر دیا گیا ہے۔ صفائی کے کام کا آغاز شہر کے سب سے بڑے نالے گجر نالے سے کیا گیا ہے، جہاں FWO کی جانب سے ہیوی مشینری کے ساتھ نالے سے کچرا نکالا جا رہا ہے۔ شہریوں نے نالے کی صفائی پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے یہ یہاں علم تھا جیسے کسی نے بند توڑ دیا ہے یہاں پر۔ یہ پورے علاقے ڈوب چکا تھا، پورا بیڑا غرق سب کا ہو چکا تھا۔ یہ سارا علاقہ، یہ علاقہ آپ یقین کریں یہ پل ہے نا، پل اتنا سا رہ گیا تھا۔ سب سے پہلے تو عمران خان وزیر اعظم کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے اس چیز کو نوٹ لیا اور کراچی میں توجہ دی، تو پھر جو ہے مراد علی شاہ کو بھی ہوش آیا کہ جو کام مجھے کرنا تھا وہ وزیر اعظم کر رہے ہیں، تو پھر ان کی بھی مہربانی ہے، شکریہ۔ شہریوں کا مزید کہنا تھا کہ نالوں سے بارش کے پانی کا اوور فلو ہونے کی اصل وجہ نالے کے اطراف میں قائم تجاوزات ہیں۔ یہ کچھ تجاوزات بھی بنے ہوئے ہیں نالے کے کنارے پہ، جو ہے یہ کہیں 300 میٹر تک نالا تھا، وہاں صرف ابھی 3 میٹر نالا رہ گیا ہے، وہاں پہ آپ خود بتائیں پانی کیسے نکلے گا۔
शहरियों का कहना था कि वफाकी व सूबाई हुकूमतों को एक दूसरे पर इल्जामात लगाने के बजाय शहर के मसाइल को हल करने पर तवज्जो देनी चाहिए। शहर कायद के नदी नालों की सफाई के काम से शहरी खुश भी हैं तो वहीं पर परेशान भी हैं। उन्होंने मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर हुकूमत इन नदी नालों की सफाई करती तो बारिश के दौरान सैलाबी सूरत हाल पेश न होती। कैमरामैन सिराज अब्बास के साथ अशरफ सोलंकी, सच टीवी, कराची। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कोरोना की वजह से नालों की सफाई में ताखीर हुई, तनकीद करने वालों को कोई दूसरा काम नहीं आता। नालों की सफाई भी हुई है। 2017 में सिंध हुकूमत ने खुद नाले साफ किए थे। क़याम खान छोरो साहब जब वजीर थे वो आप देख लें, वो काम हुआ था। लेकिन जैसे आपने कहा कि इतने बड़े शहर में और हमारा सीवरेज के निज़ाम की शॉर्ट कमिंग की वजह से ये नाले सीवरेज के लिए भी इस्तेमाल होते हैं, जो स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स है, उस वजह से इश्यूज आते हैं। अभी तक तो 1 रुपया भी नहीं दिया है, लेकिन 125 करोड़ जो आप बात कर रहे हैं ना, वो एक बड़ा प्रोजेक्ट है स्वीप का। वो सिर्फ नालों की सफाई उसमें नहीं हो, उसमें एक छोटा पार्ट नालों की सफाई का है जो हम शुरू कर रहे हैं। नहीं तो वो सॉलिड वेस्ट के हवाले से एक बड़ा प्रोग्राम है जिसको तो। ईद के तीसरे रोज भी शहर कायद में बड़ी तादाद में सुन्नत इब्राहिमी पर अमल करते हुए कुर्बानी का सिलसिला जारी है। इस हवाले से जानते हैं शहजादा मुइन की इस रिपोर्ट में। ईद के तीसरे रोज भी सुन्नत इब्राहिमी बड़े जोश और जज्बे के साथ मनाया जा रहा है और बड़ी तादाद में जानवरों की कुर्बानी की जा रही है, जबकि सियासतदानों की जानिब से भी कुर्बानी का सिलसिला जारी है। पीटीआई के मेंबर कौमी असम्बली आफ्ताब जहांगीर का कहना है कि मैं हर साल ईद उल अजहा के तीसरे दिन ऊँटों की कुर्बानी करता हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि इस वक्त जो वबा आई हुई है अल्लाह ताला इस कुर्बानी के सदके में उसे दूर फरमाए। मेरी रिवायत है कि मैं तीसरे दिन ऊँट की कुर्बानी करता हूँ। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह 6 ऊँट कुर्बान किए हैं। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इस कुर्बानी को कबूल फरमाते हुए इसके सदके में हमारे मुल्क पे खास तौर पर हमारे शहर पे खुसूसी रहमत फरमाए। शहरियों का कहना है कि हम अल्लाह की राह में जानवर कुर्बान कर रहे हैं, जबकि हमें कुर्बानी के साथ साथ सफाई सुथराई का भी ख्याल रखना चाहिए ताकि शहर को गंदगी से बचाया जा सके। हमारी इल्तमास है तमाम लोगों से जो कुर्बानी कर रहे हैं, जहाँ उनको इजाज़त मिल गई करने की, वो SOP की बिल्कुल पाबंद रहें उसके, और चीज़ों को जो ये ओफेल्स हैं जिसको आप उजड़ियाँ कहते हैं, चीज़ें गंदी चीज़ें ये सड़कों पे ना फेंकें, उनको मकाम सही जगह मकाम पे उनको फेंकें ताकि जो इदारे की गाड़ियाँ आके उनको ले जाएं। हर साल ऊँट की कुर्बानी होती है, काफ़ी दोस्त वगैरह सब इधर शरीक होते हैं और काफ़ी लोग दूर दूर से देखने आते हैं ऊँट की कुर्बानी। हर साल इधर इसी तरीके से मनाई जाती है, सुन्नत इब्राहिमी मनाया जाता है और काफ़ी अच्छा लगता है और काफ़ी लोग आते हैं, एंजॉय करते हैं इधर आके ताकि ऊँट की कुर्बानी देखें। और दूसरी चीज़ ये है कि हमारे को चाहिए और सब लोगों को चाहिए कि कराची को साफ़ रखें, जो गंदगी होती है, आलाइश वगैरह होती हैं, उनको हाथ के हाथ डंकिंग पॉइंट पे जितनी जो जगहें होती हैं वहाँ पे वेस्ट किया जाए ताकि कराची शहर साफ़ रहे। ईद कुर्बा के पहले और दूसरे दिन तो शहर कायद को साफ रखने के अच्छे इंतजामात किए गए थे, लेकिन तीसरे दिन कराची के मुख्तलिफ जगहों पे आलाइश के ढेर नजर आ रहे हैं। ईद के तीसरे रोज ज़रा गाजी खान की तहसील कोट छुट्टा के इलाके माना हमदानी में मकामी फलाही इदारे की जानिब से इज्तिमाई कुर्बानी का एहतमाम किया गया। इस दौरान 75 से ज्यादा जानवर कुर्बान किए गए। अली रजा हमदानी की रिपोर्ट। डेरा गाजी खान के इलाके माना हमदानी में शाह जमाली ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम दारुल उलूम सदीकिया शाह जमालिया अकरमुल मदारिस में इज्तिमाई कुर्बानी का एहतमाम किया गया। इज्तिमाई कुर्बानी में 75 से ज़ायद बड़े जानवर अल्लाह की राह में कुर्बान किए गए। शाह जमाली ट्रस्ट के चेयरमैन पीर मोहम्मद कमरुद्दीन शाह जमाली ने बताया कि हर साल की तरह इस साल भी शाह जमाली ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम मुर्शिदाबाद, आलीवाला और माना हमदानी फैजाबाद मदरसा में इज्तिमाई कुर्बानी का एहतमाम किया गया है। कुर्बानी का ये सिलसिला आज ईद के तीसरे रोज भी जारी है। गरीब और मुस्तहक अफराद में कुर्बानी का गोश्त तकसीम किया जाता है, जबकि लोगों को उनके घरों की दहलीज पर भी कुर्बानी का गोश्त पहुंचाया जाता है। शाह जमाली ट्रस्ट के चेयरमैन ख्वाजा पीर कमरुद्दीन शाह जमाली ने सच न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि और इस कुर्बानी के मौके पे वो लोग जिनके घर में गोश्त साल में कभी शायद आता हो, अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत करके कोशिश करके दोस्तों के ताउन से अल्हम्दुलिल्लाह हम कुर्बानियाँ करते हैं। इस साल भी तकरीबन 78 के करीब कुर्बानियाँ की गई मुख्तलिफ इलाकों में, और कुर्बानियाँ करके फिर मुख्तलिफ इलाकों में बड़े महफूज हाथों के साथ वहाँ उन लोगों तक गोश्त पहुँचाया जाता है
जो इंतहाई मुस्तहक होते हैं, जिनकी अपनी कुर्बानियाँ नहीं होती। जबकि उनका मजीद कहना था कि ईद कुर्बान हमें सब्र और इस्तकामत का दर्स देती है। इस मौका पर हमें चाहिए कि अपने अजीज़ व अकारिब के साथ साथ हमसायों का भी खास ख्याल रखें ताकि वो भी ईद की खुशियों में शामिल हो सकें। अली रज़ा हमदानी, सच टीवी, डेरा गाजी खान। ओकाड़ा में ईद उल अजहा के तीसरे रोज भी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का अमला कुर्बानी के जानवरों का फजला उठाने में मसरूफ है। शहरियों की शिकायत के लिए फाल शिकायत सेल में अब तक तकरीबन 400 से ज्यादा कॉल्स मौसूल हुई। देखिए इम्तियाज अहमद भट्ट की रिपोर्ट। हुकूमत पंजाब की जानिब से ईद उल अजहा के मौका पर जिला भर में सफाई के हवाले से अहसन इकदामात जारी। ईद के तीसरे रोज भी डिप्टी कमिश्नर उस्मान ली की हदायत पर चीफ ऑफिसर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन फिदा इफ्तिखार मीर की जेर निगरानी आलाइशों और जानवरों के फजलात को बरवक्त ठिकाने लगाने का काम जारी है। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के अमले ने ईद उल अजहा के मौका पर अपनी छुट्टियों को मनसूख करते हुए सीवरेज निकासी और गंदगी के ढेर उठाने में अहम किरदार अदा किया। गंदगी और आलाइशों को उठाने के लिए 21 गाड़ियां और 4 रिक्शे सैनिटरी सुपरवाइजर के हवाले भी किए। ईद उल अजहा पर शहरियों की शिकायत के हवाले से कंट्रोल रूम को मुकम्मल तौर पर फाल कर दिया गया, जहां शहरियों की जानिब से तकरीबन 400 से ज्यादा कॉल्स मसूल हुई। अब तक शहरियों की कॉल्स पर बर वक्त कार्रवाई करते हुए आलाइशों को उठाने का अमल जारी है। हमने पहले दिन के लिए 21 गाड़ियाँ और 4 मोटरसाइकिल रिक्शे हायर किए थे। उसके बाद हमारी अपनी मशीनरी जिसमें 7 ट्रैक्टर ट्रालियाँ और 2 लोडर ये काम करते रहे। उसके बाद हमने 6 ट्रालियाँ और 1 एक्सीवेटर हायर किया था जो ईद के 2 दिन काम करता रहा। अल्हम्दुलिल्लाह हमने पूरी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का एरिया को क्लियर किया है और अभी भी जो कंप्लेंट्स आ रही हैं, अभी अगर कोई आ रही है तो उसको विद इन नो टाइम उसको हम रिमूव कर रहे हैं। अवाम अपने शहर को साफ सुथरा रखने के लिए म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के अमले का भरपूर साथ दें और जानवरों के फजलात को ये प्लास्टिक बैग में डालकर साइड पर रखें ताकि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का अमला आपकी निशानदही पर आपके इलाके में पहुंचकर आलाइशों को उठा सके। कैमरा टीम के हमरा इम्तियाज अहमद भट्ट, सच न्यूज, उकाड़ा। ईद की खुशियों में भी सभी शरीक हों तो ईद का मजा दोबाला हो जाता है। वर्ल्ड बीच चैंपियन इनाम बट पहलवान ईद के 2 रोज घर गुजारने के बाद तीसरे और आखिरी रोज की खुशियां कहां मनाने जा रहे हैं, बता रहे हैं हाफिज शहजाद। जी हाफिज शहजाद। बिल्कुल जी, ईद के पहले 2 रोज घर में फैमिली, रिश्तेदारों और दोस्त अहबाब के साथ गुजारने के बाद जो है अगर ससुराल वालों को ईद की खुशियों में शामिल कर लिया जाए तो ईद की खुशियां और दुबाला हो जाती हैं। और चाहे कोई कितना ही बड़ा पहलवान क्यों ना हो, ससुराल तो जाना ही पड़ता है। मैं भी एक वर्ल्ड चैंपियन पहलवान के घर मौजूद हूं जो सामान बांधे हुए हैं, पता नहीं कहां जा रहे हैं। इनसे बात करते हैं। इनाम, आप तो वर्ल्ड चैंपियन है, कहां जा रहे हैं? जी बिल्कुल, ईद का दिन है और 2 दिन हमने कुर्बानी भी की, गोश्त भी डिस्ट्रीब्यूट किया और अजीज़ों कारब और पहलवानों की खिदमत वाजो भी की। और आज जो है ना वो ससुराल जाना है हमने और आज हमारा मेहमान बनने का दिन है और इसलिए हम ससुराल जाके ईद की खुशियों को ज्यादा कर रहे हैं, दुबाला कर रहे हैं। भाभी से भी बात करते हैं। भाभी, ईद मेके में ज्यादा मजा आता है या ससुराल में? दोनों जगह अपना अपना अलग मजा है। उधर मामा पापा होते हैं, इधर नए मामा पापा और मेरे सारे भाई जो नए बने हैं उनके साथ अलग मजा आता है। अच्छा, बिल्कुल, आपने इनाम और भाभी की बात सुनी है। मैं उनका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, उन्हें भी ससुराल जाना है और मुझे भी इसके बाद ससुराल ही जाना है। जी, यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। चिड़ियाघर में शेर और शेरनी की हलाकत पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जरताज गुल और अमीन असलम के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का फैसला कर लिया। चीफ जस्टिस अतर बिन ने रिमार्क्स दिए हैं कि जो रियासती नुमाइंदे जानवरों का ख्याल नहीं रख सकते वो इंसानों का क्या ख्याल रखेंगे। क्यों ना इन तमाम जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चिड़ियाघर में शेर और शेरनी की हलाकत के मामले पर समाअत हुई, जिस दौरान अदालत ने सरताज गुल और अमीन असलम के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का फैसला कर लिया। अदालत ने शेरनी और शेर की हलाकत के जिम्मेदारों के नाम तलब कर लिए, जबकि सेक्रेटरी मौसमियाती तब्दीली और चेयरमैन वाइल्ड लाइफ बोर्ड को भी तलब कर लिया गया है। चीफ जस्टिस अतर बिन ने रिमार्क्स दिए कि वफाकी हुकूमत खुद बेनकाब होगी। शेरों के साथ क्या हुआ, वजारत मौसमियाती तब्दीली, MCI, वाइल्ड लाइफ सियासत कर रहे हैं। तीनों महकमे अपनी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। अदालत ने तयन किया था अगर किसी जानवर को कुछ हुआ तो कौन जिम्मेदार होगा।
इस बात का अंदाजा था जानवर से ही होने जा रहा है। मेंबर्स वाइल्ड लाइफ जानवरों की मुंतकली के जिम्मेदार होंगे। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने मजीद रिमार्क्स दिए कि वफाकी हुकूमत ने बोर्ड तश्कील देकर नोटिफिकेशन पेश किया था, क्यों न तमाम जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई की जाए। अदालत तमाम जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई करेगी। ये आसान है, बयान देकर क्रेडिट ले लें, क्या वो अपने खिलाफ कार्रवाई करेंगे? आपने अदालती फैसले का मजाक बना दिया। तीनों महकमे अपनी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन ने रिमार्क्स दिए हैं कि शक का शुबा मुल्जिम को मिलता है, लेकिन केस में शक पैदा नहीं किया जाना चाहिए। अगर कानून की तशरीह बदलना पड़ी तो बदलेंगे। कानून को इस मकाम पर लाना है जहां मुआशरे में इस्तेहकाम पैदा हो। सुप्रीम कोर्ट में कत्ल के मुजरिम अशरफ की उम्र कैद के खिलाफ अपील की समाअत जस्टिस मजहर आलम मियां खैल की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने की। दौरान समाअत मुजरिम के वकील ने कहा कि 2 भाइयों के झगड़े के दौरान गोली एक भाई की बेटी को लग गई। जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन ने रिमार्क्स दिए कि एक भाई का इश्तियाल में दूसरे भाई की बेटी को कत्ल करना बदकिस्मती है। शक का शुबा मुल्जिम को मिलता है, लेकिन केस में शक पैदा नहीं किया जाना चाहिए। अगर कानून की तशरीह बदलना पड़ी तो बदलेंगे। कानून को इस मकाम पर लाना है जहां मुआशरे में इस्तेहकाम पैदा हो। मुआशरे में असलहे की इजाजत होनी ही नहीं चाहिए। जब शॉर्ट टेम्पर लोगों के पास असला होगा तो ऐसे वाकयात होंगे। अदालत ने अपील मुस्तरद कर दी। मुजरिम अशरफ पर झगड़े के दौरान भाई की बेटी को कत्ल करने का इल्जाम था। सुप्रीम कोर्ट खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से मुकदमा ताखीर से दायर करने पर बरहम हो गई। अदालत ने दरखास्त जायदुल मियाद होने पर खारिज कर दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि अदालत में सबसे ज्यादा जायदुल मियाद मुकदमात केपी सूबे में आते हैं। यह ताखीर दानिस्ता और जानबूझकर की जाती है। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने मुकदमे की समाअत के दौरान केपी के हुकूमत की जायदुल मियाद दरखास्त देखी तो बरहमी का इजहार किया। चीफ जस्टिस ने कहा कि 54 दिन जायदुल मियाद दरखास्त का क्या जवाब बनता है। सबसे ज्यादा जायदुल मियाद मुकदमात केपी के सूबे में आते हैं। यह ताखीर दानिस्ता और जानबूझकर की जाती है। अदालत की राय है कि वजीर आला की बनाई गई लॉ कमेटी पर नजर सानी की जाए। एडिशनल एडवोकेट जनरल ने जवाब दिया कि लॉ कमेटी की सरबराही खुद वजीर आला केपी के कर रहे हैं। लॉ कमेटी की तश्कील के बाद अब मुकदमात बर वक्त दायर किए जा रहे हैं। अदालत ने केपी के हुकूमत की दरखास्त जायदुल मियाद होने पर खारिज कर दी। कोशिशें रंग लाने लगी। पाकिस्तान में नए कोरोना केसेस और अमवात में मुसलसल कमी की जा रही है। मुल्क में कोरोना के एक्टिव केसेस की तादाद कम होकर 25,172 रह गई। 2,48,873 मरीज सेहतयाब होकर घरों को भी जा चुके हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने कोरोना के अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिया, जिसके मुताबिक 24 घंटों में मुल्क भर में कोरोना से 8 अमवात रिकॉर्ड हुई। मुल्क में कोरोना से अमवात की मजमूई तादाद 5,984 हो गई। मुल्क में कोरोना के 2,48,873 मरीज सेहतयाब हो गए। 24 घंटों में कोरोना के 11,026 टेस्ट किए गए, जिनमें 330 अफराद में मर्ज की तशखीस हुई, जिसके बाद मुतासरा मरीजों की तादाद 2,80,029 हो गई। मुल्क भर में 20,21,096 कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। सिंध में सबसे ज्यादा केसेस 1,21,486 रिकॉर्ड, पंजाब में 93,197, खैबर पख्तूनख्वा में 34,223 केसेस रिकॉर्ड हुए। इस्लामाबाद में कोरोना केसेस की तादाद 15,076, बलूचिस्तान में 11,774, गिलगित में 2,180 और आजाद कश्मीर में 2,093 मजमूई केसेस रिकॉर्ड हुए। मुल्क भर के 735 अस्पतालों में कोरोना के 1,595 मरीज ज़ेरे इलाज हैं, जबकि कोरोना मरीजों के लिए 1,859 वेंटिलेटर्स मुख्तस हैं। इसके अलावा मुल्क भर में कोरोना के 213 मरीज वेंटिलेटर्स पर ज़ेरे इलाज हैं। पाकिस्तान में कोरोना की सूरत हाल ड्रामाई तौर पर तब्दील हो चुकी है। अमरीकी अखबार ने एतराफ किया कि पाकिस्तान ने 2 माह कबल तेजी से फैलते कोरोना पर 80% तक काबू पाया। वबा से मुतासरा मरीजों और अमवात में नुमायां कमी वाक़ई हुई है। अमरीकी जरीदे वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के सबसे बड़े और वायरस से मुतासरा शहर कराची समेत बड़े शहरों के अस्पतालों में कायम कोरोना वार्ड्स भरे हुए थे। अब वहां मरीजों की कमी की वजह से बिस्तर खाली हो रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक वेंटिलेटर्स पर मौजूद मरीजों की तादाद गुज़श्ता माह की निस्बत निस्फ हो गई है। पाकिस्तान के हमसाये ममालिक ईरान और भारत में मुतासरा मरीजों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक मार्च में पाकिस्तान का फौरी लॉकडाउन कोरोना के फैलने को रोकने का सबब बना। रमजान के आखिर में नरमी और ईद उल फितर पर मेलजोल से वायरस दोबारा तेजी से फैला। अखबार ने लिखा कि पाकिस्तान में ये पेशरफ्त वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से आलमी इदारा सेहत की हिदायत के बरखिलाफ इक़दामात के बाद हुई। WHO ने मई में कहा था कि लॉकडाउन से गरीबों समेत मुल्क की मईशत शदीद मुतासर हो रही है। रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने आलमी इदारा सेहत की वार्निंग के बरक्स लॉकडाउन की मुखालिफत की थी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने लॉकडाउन के असरात को संगीन और खतरनाक करार दिया था। अमरीका जैसा वसाइल से मालामाल मुल्क भी कोरोना से बदस्तूर नबुर्द आजमा है।
वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि भारत जो मर्जी कर ले, कश्मीरियों ने 5 अगस्त के इक़दाम को मुस्तरद कर दिया है। कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत की जिद्दोजहद जारी रहेगी और पाकिस्तानी कौम कश्मीरियों के साथ खड़ी है। आप जो मर्जी फैसले कर लें, 5 अगस्त कश्मीरियों ने आपके इक़दामात को मुस्तरद कर दिया है, कोई इसे कबूल नहीं करेगा। हक़ खुद इरादियत की जद्दोजहद जारी रहेगी। भारतीय मजालिम के शिकार कश्मीरियों से इजहार यकजहती। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी, वजीर दिफा परवेज खटक और मुशीर कौमी सलामती मुईद यूसुफ ने अस्करी हुकाम के हमरा LOC सेक्टर चिरईकोट का दौरा किया। इस मौके पर अस्करी हुकाम भी विफाकी वज़रा के हमरा थे, जहां मीडिया नुमाइंदों को भारत की जानिब से लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जियों और शहरी इलाकों को निशाना बनाए जाने की शवाहिद के हवाले से आगाह किया गया। अस्करी हुकाम की जानिब से ब्रीफिंग में बताया गया कि भारतीय फौज की जानिब से कंट्रोल लाइन पर सरहदी खिलाफ वर्जियां मुसलसल जारी हैं, जिनके मुतासरीन में खवातीन, बच्चे और बुजुर्ग अफराद भी शामिल हैं। सरहदी खिलाफ वर्जी से पाकिस्तानी अवाम को नुकसान उठाना पड़ता है। पाक फौज की जानिब से भरपूर कार्रवाई करते हुए पाक फौज की चौकियों को निशाना बनाया जाता है। वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर तैनात पाक फौज के जवानों की अजमत, हिम्मत और जज्बे को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि पूरी कौम अपने इन जदी सपूतों की जवामर्दी और बहादुरी पर फख्र करती है। भारत जो मर्जी कर ले, कश्मीरियों ने 5 अगस्त के इक़दाम को मुस्तरद कर दिया है। पाकिस्तानी कौम कश्मीरियों के साथ खड़ी है। कश्मीरियों से इज़हार यकजहती का मिशन। वजीर खारजा शाह महमूद मुजफ्फराबाद पहुंच गए। वजीर आजम आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर से मुलाकात की और मकबूजा जम्मू और कश्मीर की सूरत हाल और 5 अगस्त यौम इस्तेहसाल के लाहे अमल पर तबादला ख्याल किया गया। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि पूरी पाकिस्तानी कौम मुश्किल की इस घड़ी में अपने कश्मीरी भाइयों के साथ खड़ी है। मजलूम और निहत्ते कश्मीरियों की आवाज को दुनिया के हर फोरम पर उठाएंगे। इस मौका पर वजीर आजम आजाद कश्मीर राजा फारूक हैदर का कहना था कि पाकिस्तानी कौम की जानिब से कश्मीरियों के साथ यकजहती के बेमिसाल मुजाहरे पर उन्हें सलाम पेश करते हैं। पाकिस्तान कश्मीरियों का दुनिया भर में वाहिद वकील है। कश्मीरियों ने अपना मुस्तकबिल ममलिकत खुदादाद पाकिस्तान से वाबस्ता किया हुआ है। जिद्दोजहद आज़ादी में कश्मीरी आवाम ने जो कुर्बानियां दी, उनकी असर हाजिर में मिसाल नहीं मिलती। मोदी सरकार ने मकबूजा कश्मीर को जेल में तब्दील कर दिया और आजादी के लिए उठती आवाजों को दबाने के लिए सलाखों के पीछे भेज दिया। लेके रहेंगे आजादी के नारे भारत की नाकामी का मुंह बोलता सबूत हैं। हजारों हुर्रियत रहनुमाओं, सियासी और इंसानी हुकूक के कारकुनों, मजहबी सरबराहों, सहाफियों, ताजिरों, वकला और सिविल सोसाइटी के मेंबर्स, नौजवानों और कारकुनों को 5 अगस्त 2019 के बाद या उससे कबल गिरफ्तार किया गया था और अभी भी तिहाड़ और हिंदुस्तान और कश्मीर की दीगर जेलों में बंद हैं। यासीन मलिक, शबीर अहमद शाह, मोहम्मद अशरफ, मुसरत भट्ट, सैयद आसिया अंदराबी, नाहिद नसरीन, फहमीदा सूफी, नईम अहमद खान, सीनियर हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी और मीर वाइस उमर फारूक श्रीनगर और दीगर इलाकों में नजरबंद और कैद हैं। तेज रफ्तार इंटरनेट पर जारी पाबंदी ने कश्मीरियों को तालीम, कारोबार और कोरोना वायरस से मुतालिक मुफीद मकामी और आलमी मालूमात से महरूम कर दिया है। हिंदुस्तान ने 5 अगस्त 2019 को मकबूजा कश्मीर में इंटरनेट 4G खदमात मुअत्तल कर दी थी। मोदी हुकूमत मकबूजा कश्मीर की मुस्लिम अक्सरियती हैसियत को तब्दील करने में मसरूफ है। इस मकसद के लिए उसने हजारों हिंदुस्तानियों को डोमिसाइल सर्टिफिकेट दिए हैं। मकबूजा कश्मीर में प्रेस की आजादी मुस्तकिल खतरे में है, जहाँ सहाफियों को हिरासत में लिया जाता है और उन्हें हरासा किया जाता है। जालिमाना फौजी लॉकडाउन ने मकबूजा कश्मीर को पत्थर के दौर में धकेल दिया है। पिछले 12 महीनों का बदतरीन मुहासरा कश्मीरी अवाम के आजादी के जज्बात को ज़ेर करने में नाकाम रहा है। कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी ने मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर बोल उठे। मकबूजा कश्मीर की साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती की नजरबंदी को गैर कानूनी करार देते हुए रिहाई का मुतालबा कर दिया। मकबूजा कश्मीर को मोदी सरकार ने कैद खाना बना दिया है। सियासी क़यादत की नजरबंदी पर कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी भी सामने आ गए। राहुल गांधी ने साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती की नजरबंदी को गैर कानूनी करार दे दिया। समाजी राबते की वेबसाइट ट्विटर पर लिखा कि जब हुकूमत गैर कानूनी तौर पर सियासी रहनुमाओं का नजरबंद करती है तो जमहूरियत को नुकसान होता है। जमहूरियत के नाम निहाद दावेदार भारत ने पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की रहनुमा को मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म करने से पहले ही हिरासत में ले रखा है। फिर उन्हें घर में ही नजरबंद किया गया है। चंद रोज कबल उनकी गैर कानूनी नजरबंदी में 3 माह की तौसीक कर दी गई है। महबूबा मुफ्ती का कहना था कि उनकी गैर कानूनी नजरबंदी की दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा है। भारत की अपोजिशन जमात कांग्रेस मोदी सरकार की मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म करने की मुखालिफत कर रही है। कांग्रेस रहनुमाओं का कहना है कि भारत ने मकबूजा कश्मीर को जेल में तब्दील कर दिया है।
मकबूजा कश्मीर में भारत ने गैर कानूनी इक़दामात के बाद जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ डाले। 5 अगस्त 2019 से अब तक 214 कश्मीरियों को नामनहाद सर्च ऑपरेशन के दौरान शहीद किया गया। हजारों अफराद भारतीय फौज की फायरिंग से जख्मी हुए। 5 अगस्त के बाद मोदी सरकार ने मकबूजा वादी में बसने वालों पर जुल्म की इंतहा कर दी। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक 1 साल के दौरान 214 कश्मीरी नौजवानों को नामनहाद सर्च ऑपरेशन के दौरान शहीद किया गया। 1390 से ज्यादा कश्मीरी काबिज फोर्सेस की फायरिंग से जख्मी हुए। काबिज फौज के हाथों रवा साल जनवरी से अब तक नामनहाद सर्च ऑपरेशन की आड़ में 172 अफराद शहीद हुए। आज कश्मीरियों को दौरान हिरासत शहीद किया गया। 12 माह के दौरान 13,680 कश्मीरियों को गैर कानूनी तौर पर हिरासत में लिया गया। रवा साल जुलाई में नामनहाद सर्च ऑपरेशन और जाली मुकाबलों के दौरान 24 कश्मीरी शहीद हुए। 3 साला मासूम बच्चे को उसकी आंखों के सामने गोलियां मारकर शहीद किया गया। जुलाई में 3 कश्मीरी नौजवानों को दौरान हिरासत शहीद किया गया। काबिज फौज के हाथों जून में 54 कश्मीरी नौजवान शहीद हुए। मई में 21 कश्मीरियों ने जाम शहादत नोश किया। काबिज फौज ने माह अप्रैल में इंसानी हुकूक को पामाल करते हुए 2 बच्चों और खातून समेत 33 कश्मीरियों को शहीद कर दिया। यहीं पर बस नहीं किया बल्कि 152 अफराद को भी जख्मी कर दिया। माह अप्रैल में सियासी कारकुनों समेत 845 अफराद को गिरफ्तार किया गया। 2 बच्चे यतीम और 1 खातून बेवा हुई। जालिम फौज ने 44 घरों को भी मिसमार किया। भारतीय फोर्सेस 5 अगस्त के बाद कश्मीरियों के घरों को भी जला रही है। उन्हें तोड़ फोड़ कर तबाह किया जा रहा है। भारतीय फौज ने बड़े पैमाने पर लूट मार भी की, लोगों से जीने का हक भी छीन लिया है। मोदी सरकार की जानिब से आर्टिकल 370 के खात्मे के बाद कश्मीरियों ने तो जैसे अपनी शनाख्त ही खो दी। डिप्रेशन और दिलो दिमाग पर छाई मायूसी की चादर वसी होने लगी। कोई पुरसाने हाल नहीं। कश्मीरियों को अपनी शनाख्त पर बड़ा मान था, गरूर था अपने तशख्खुस पर, अपने कश्मीरी होने पर, अपनी बहती नदियों पर, अपने बुलंद कोहसारों पर। लेकिन बायक जंबिश कलम सब राख में मिल गया, सब ख्वाब बिखर गए। वजह बनी कश्मीरियों को शनाख्त देते आर्टिकल 370 का खात्मा। गलियों में दंदनाते बेरहम भारतीय फौजी कश्मीरियों की इज्जतें पांव तले रौंदते चले जाते हैं। पूरी आबादी के बच्चों, बुजुर्गों, जवानों और खवातीन को खड़ा किया जाता है लाइन में और फिर वही सवालात, थप्पड़, घूंसे, लाते जो तफरीक नहीं करते। मर्द और जन का बच्चों की गिरफ्तारियां भी मामूल बन चुकी हैं। माओ के बैन कलेजे चीरते हैं। कश्मीर सन 1989 से ही जहनी सेहत की हंगामी सूरत हाल से गुजर रहा है। इस दौरान जब भी यहाँ सूरत हाल खराब हुई है, जैसे 2008, 2010 और 2016 के मुजाहिरे या अब आर्टिकल 370 के खात्मे के बाद, इस तरह के हर बड़े उतार चढ़ाव के दौरान तशद्दुद और तनाव में इजाफा हुआ है। एक आम कश्मीरी ने इस तरह अचानक आर्टिकल 370 के हटाए जाने को अपनी शनाख्त और शहरियत पर हमले के तौर पर लिया है। कश्मीरी जवानों में शौक था कुछ बनने का, क्रिकेट खेलने का, जिम जाने का, कश्ती रानी का, लेकिन अब उनकी जिंदगी बर्बाद हो गई है। वो भारतीय फौजियों की जानिब से उठाए जाने और जबरी गुमशुदगी के खौफ में मुब्तला हो चुके हैं। मायूस हैं अपने मुस्तकबिल से। 5 अगस्त के बाद से कश्मीरी मुस्कुराना भूल गए हैं। जहन में है तो बस एक ही सवाल कि आगे क्या होगा, हमारा मुस्तकबिल क्या है। यहाँ लोगों में आर्टिकल 370 के खात्मे के मुतालिक अब तक कंफ्यूजन और खौफ है। लोग बार बार एक दूसरे से पूछते हैं कि अब हमारे साथ क्या होगा। आईजी पंजाब शोएब दस्तगीर का कहना है कि जराइम के खात्मे और सर्विस डिलीवरी को मजीद बेहतर बनाने के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मौसर इस्तेमाल वक्त की अहम जरूरत है। लाहौर में आईजी पंजाब की ज़ेर सदारत एडिशनल आईजीज को उनके शोबों के बारे दिए गए टास्क के हवाले से इजलास मुनक़िद हुआ। इस दौरान जदीद पॉलिसिंग के हवाले से तमाम शोबों को दरकार एप्स और सॉफ्टवेयर्स और उनकी अपग्रेडेशन समेत दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। आईजी पंजाब शोएब दस्तगीर ने मुतल्लिका हुक्काम को पुलिस के ऑपरेशनल और वर्किंग सिस्टम को IT के जदीद मॉडल्स पर अपग्रेडेश करने की अमल को मजीद तेज करने की हिदायत की। उनका कहना था कि जराइम की बेखनी और सर्विस डिलीवरी को मजीद बेहतर करने के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मौसर इस्तेमाल वक्त की अहम जरूरत है। थानों की वर्किंग को बेहतर से बेहतर करने के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का SOPs के मुताबिक इस्तेमाल यकीनी बनाया जाए। इटली में होने वाली मकबूजा कश्मीर कॉन्फ्रेंस में भारतीय फौज के गासिबाना कब्जे की शदीद मुसम्मत की गई। EU पाक फ्रेंडशिप फेडरेशन इटली और अवाम दोस्त ग्रुप के जेर एहतमाम कश्मीर कॉन्फ्रेंस हुई। कॉन्फ्रेंस हॉल पाकिस्तान जिंदाबाद, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारों से गूंज उठा। इटली में पाकिस्तानी कौंसल जनरल मंजूर चौधरी, सैयद सजाद बुखारी, लॉर्ड नजीर अहमद और चौधरी परवेज इकबाल समेत शहरियों की बड़ी तादाद कॉन्फ्रेंस में शरीक थी। मुकर्ररीन ने कहा कि पाकिस्तान हमारी जान है, इस पर सब कुछ कुर्बान है। कश्मीर की सूरत हाल पर आलमी बरादरी भी खामोश तमाशाई न बने।
کشمیر بنے گا پاکستان، پوری پاکستانی قوم یک زبان ہو کر، شہری کہتے ہیں اقوام متحدہ سے کوئی امید نہیں، معاملے کے حل کے لیے دو ٹوک موقف اپنانا ہوگا۔ کشمیری بھائیوں کے ساتھ ہیں اور ہم ہر موقع پہ ان کے ساتھ رہیں گے، اور ہم جو ہے وہ انڈیا کو پیغام دینا چاہتے ہیں، مودی کو خاص طور پہ، کہ وہ یہ نہ سمجھے کہ کشمیری اکیلے ہیں، پاکستانی قوم اور تمام جو مسلم امہ ہے وہ کشمیریوں کے ساتھ کھڑی ہے۔ عالمی برادری سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ کشمیر کے اوپر جو ظلم و ستم ہو رہے ہیں انہیں ختم کروائے اور کشمیری ہمارے بہن بھائیوں کو ان کا حق دلوائے۔ جو اس بار کشمیر میں یہ ہو رہا ہے اتنے سالوں سے، اور اب تو بالکل انہوں نے اخیر کر دی ہے اس بار ظلم کی، کہ بالکل کشمیریوں کو اس بار نماز بھی ادا نہیں کرنے دی گئی، اور جیسے ہمارے مسلمان خواتین کی عصمت دریاں ہو رہی ہیں، ان کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں، بچوں کو مارا جا رہا ہے، بزرگوں کو مارا جا رہا ہے، تو اس نے بھارت نے تو بالکل اس وقت جو ہے ظلم کا بازار گرم کیا ہوا ہے۔ عالمی اسلام کا کام ہے کہ اس پہ آواز بلند کرے، تاکہ ہمارے کشمیری بھائی آج 1 سال سے اوپر ہو گیا کہ وہ ایک جیل کا 80 سال ہے، میں ابھی بھی حاضر ہوں کشمیر کے لیے، میرا خون ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ کو کچھ اقوام متحدہ کو ایکشن لینا چاہیے۔ جس کو میرے اللہ نے دھرتی پہ اتارا کشمیر ہمارا، جس کو میرے اللہ نے دھرتی پہ اتارا کشمیر ہمارا، ہر ایک نظارہ لگے جنت کا نظارہ کشمیر ہمارا، جس کو میرے اللہ نے دھرتی پہ اتارا کشمیر ہمارا۔ سرسبز پہاڑوں پہ وہ جھرنوں کی روانی، میٹھا تیرا پانی، سرسبز پہاڑوں پہ وہ جھرنوں کی روانی، میٹھا تیرا پانی، گل پوش درختوں پہ قیامت کی جوانی، ہر شام سہانی، سنگھار زمیں کا تو ہر ایک آنکھ کا تارا کشمیر ہمارا، جس کو میرے اللہ نے دھرتی پہ اتارا کشمیر ہمارا۔ دنیا کے سب سے بڑے تجارتی راستے پر واقع بلوچستان کے ضلع گوادر میں قائم گہری ترین بندرگاہ ملک میں معاشی استحکام کے لیے سنگ میل ثابت ہو رہی ہے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ گوادر پورٹ کی جغرافیائی اہمیت خطے کی سلامتی کی ضامن ہے۔ عبدالغنی کا سب سے بڑی اور گہری بندرگاہ ہے، بلکہ یہ دنیا کے سب سے بڑے تجارتی راستے پر بھی واقع ہے۔ گوادر سے تیل درآمد کرنے پر جہاں چین کو سالانہ 20 ارب ڈالر سے زائد کی بچت ہوگی، وہی پاکستان کو بھی اربوں ڈالرز کا زر مبادلہ حاصل ہوگا۔ اقتصادی ماہرین کے بقول گوادر پورٹ پر وسط ایشیائی ریاستوں کو اگر سہولیات مہیا کی جائیں تو قومی آمدن میں بھی 40 ارب ڈالر سے زائد اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ گوادر پورٹ پر بحری جہازوں کے لنگر انداز ہونے کے لیے 120 سے زائد برتس ہیں۔ اس پورٹ سے 45 دن کی مسافت 10 یوم میں مکمل ہو جاتی ہے۔ پاک چین اقتصادی راہداری منصوبہ جہاں دیگر کئی حوالوں سے پاکستان کی معاشی ترقی کے لیے سنگ میل ثابت ہو رہا ہے، وہی اس منصوبے سے 2 لاکھ سے زائد افراد کو روزگار کے مواقع بھی میسر آ رہے ہیں۔
इस अजीम मंसूबे का एक और अहम पहलू ये भी है कि 35 अरब डॉलर्स की खतीर रकम मुल्क में तवानाई के मंसूबों पर खर्च की जा रही है, जिससे मुल्क में तवानाई के बहरान का खात्मा भी मुमकिन हो सकेगा। माहिरीन कहते हैं कि गवादर पोर्ट अपनी बेपनाह जोग्राफियाई अहमियत की बदौलत खित्ते में मुआशी तरक्की और सलामती की भी जामिन है। कैमरामैन अली खान के साथ अब्दुल गनी कांकर, सच न्यूज, कोयटा। इलाकाई खबरनामा से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sach.tv.pk। देखते रहिए सच न्यूज।